remaining some questions. ठीक है, let's complete them so that today will be the last day of the cost and production function. From Monday we will be entering into markets. ठीक है, मैंने कॉस्ट पे ज्यादा फोकस किया है बिकॉज आई नीड देम एट द टाइम ऑफ मार्केट, और बहुत डीप में जाके हर चीज ली है. सो लेट मी चेक. ओके, एक सेकंड, पहले वो कंप्लीट करता हूं. 108 तक हुआ था राइट ना. कल मैंने मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया. वो ऑब्वियसली मार्केट में वो डीप में करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108. The vertical difference between TVC and TC. Vertical difference जब भी बोलेंगे ना, they are talking about the deduction between, like subtraction between them. Total cost minus total variable cost is total fixed cost. Is total fixed cost. Answer is total fixed cost. ठीक है, next. अगर वो एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बोलते तो मैं बोलता AFC. डिफरेंस मींस डिस्टेंस. ठीक है, the law of variable proportions comes into being when there are only two variable factors. No, there is a fixed factor and a variable factor. All factors are variable. This is returns to scale. Long run returns to scale. Variable factors yield less. No, answer is B. There is a fixed factor and there is a variable factor, a single variable factor with fixed factors. Variable proportion की बात कर रहे हो ना, the proportion between the fixed factors and variable factors should vary, we should change. Short run. Dash dash is the implicit cost of production. Implicit. Opportunity cost, wages of the labor, contractual payment, accounting cost, explicit cost. Charges for electricity, accounting cost, explicit cost. Interest on the owned money, interest on capital is opportunity cost. Payment for the raw material is a contractual payment. It's an explicit cost, accounting cost. All other are accounting cost. At a point of inflection, the marginal product is, if you remember, right? Marginal product maximum होगा. If you remember, this was my MP. And this was my TP. So at a point of inflection, initially increasing at increasing rate, later on increasing at diminishing rate. This is a point of inflection. My MP is a maximum. अगर ऐसे लिखा गया at a point of inflection, the marginal cost is, लिख लेना वहां पे. दूसरा, ये प्रोडक्शन फंक्शन का हो गया, बराबर ना. At a point of inflection, हमें पता है MC and MP are inversely related. So at a point of inflection, marginal cost will be minimum. Marginal cost is minimum. मैंने आपको समझाया था ये वाला, इफ यू रिमेम्बर. ऐसे एक दूसरे को रिलेट करना आना चाहिए आपको. दिस इज माई MC. या पहले हम ऐसे निकालते हैं. सपोज दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज टोटल कॉस्ट. टोटल की डायग्राम यहाँ पे रेट उनका चेंज हो रहा है. इनिशियली इंक्रीजेस डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होते हैं, लेटर ऑन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होते हैं. डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, लेटर ऑन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहे हैं. सपोज दिस इज योर MC. सपोज अगर मैं टोटल कॉस्ट कर में MC लेके आता हूं तो ऐसे रहेगी. सो अब राइट,
दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, सो ये समझ में आना चाहिए. आगे, सपोज द सोल प्रोप्राइटर is earning total revenues of rupees 2 lakhs and incurring explicit cost of 1 lakh 50. Accounting cost 1 lakh 50. So your accounting profit is 50,000. Accounting profit is 50,000. If the owner could have worked for another company for 60,000, opportunity cost is 60,000. So accounting cost minus opportunity cost, or accounting profit minus implicit cost is a economic profit. So 50,000 minus 60,000. The firm is incurring into economic loss of rupees 10,000. Of rupees 10,000. Next, ये हमने पहले किए हैं 135. Dash dash is also known as planning curve. बोलो ABCD, which is called as planning curve. Envelope curve. बोलो कौन सी curve? Which curve is planning curve? LSC is a planning curve. And short run average cost is called as planned curve. Then आगे, then planning or envelope curve. Next, 116 हमने किया है. ये क्वेश्चन देखते हैं. They have given you number of labors or R of labors, total output and margin output. ठीक है, देखते हैं. Which cost increases continuously with increase in the production. अच्छा, इसके क्वेश्चंस नहीं है शायद से, इसके क्वेश्चंस मिसिंग है. ठीक है, शायद से वो टाइपिंग में वो क्वेश्चंस मिस हुए होंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट, which cost increases continuously with increase in the production. कौन सी कॉस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन? एवरेज कॉस्ट पहले डिक्रीज होगी बाद में इंक्रीज होगी. मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होगी बाद में इंक्रीज होगी. फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. वेरिएबल कॉस्ट एवरेज नहीं लिखा उन्होंने, हमेशा इंक्रीज होगी. सो विच इज द आंसर? डी. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स इंप्लाइज इंक्रीजिंग रिटर्न्स. रिटर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब कॉस्ट क्या हो रही होगी? डिक्रीज. रिटर्न्स एंड कॉस्ट आर अपोजिट. एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, जो बोलना है बोलो. कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट, नो. डिमिनिशिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, यस. एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज एवरेज कॉस्ट. ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल एंड लेबर, नो. एक्सटर्नल इकोनॉमीज, नो. सो आंसर इज बी. ये पहले क्वेश्चन किया हमने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहां तक जब हमने वो अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट किया तभी अपने हुए थे. नेक्स्ट, 125. देखो क्या है 125. 125 is the following are some of the cost of a clothing manufacturer. Clothes manufacture कर रहा है. State which among them will you consider fixed? Cost of the cloth, price, अच्छा, piece wages paid to worker. What is piece wages? Means अगर एक शर्ट बनाओगे तो आपको इतना, सपोज 200 पर शर्ट, राइट, पर पीस. पीस वेजेस मतलब जैसे आउटपुट बनाओगे. बीडी वर्कर सुना होगा आपने, उनको क्या होता है, जितनी वो बीडी बनाएंगे ना उतने उनको वेजेस मिलेंगे.
एक बीड़ी के पीछे सपोज 5 रुपीज या 1 रुपए एक बीड़ी के पीछे। लिज्जत पापड़ आपने सुना होगा पुणे में, कर रोड पे, प्रभात रोड पे लिज्जत पापड़ सुना होगा आपने, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, लेडीज वहां पे जाके पापड़ बनाती है, या घर पे भी वो मटेरियल लेके जा सकती है, वहां से मटेरियल कलेक्ट करते हैं और अपने घर पे बनाएंगे। जितने वो पापड़ बनाएंगे अकॉर्डिंगली उनको वेजेस मिलेंगे। सो पीस वेजेस कंसेप्ट इज योर वेजेस आर एसोसिएटेड विद योर आउटपुट। जितना आउटपुट बनाओगे उतना वेजेस आपको मिलेंगे। समझ में आ रहा है? सो वेजेस चेंजेस विद द आउटपुट, इट इज नॉट फिक्स्ड। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स ओइंग टू टाइम, ठीक है, ओविंग टू टाइम and cost of electricity for running the business. Electricity owing to time. If you remember, हमने बोला था fixed cost are function of the time and the output. Fixed cost are the function of time and output. So depreciation is वैसे भी fixed cost, whether you use it or you do not use it. Like owing to time means कौन सी मेथड पता है ना, SLA, WDV, sum of the years digit method, sum of the years digit method. उसमें हम एक्चुअल यूज नहीं देखते, हम टाइम के हिसाब से डिप्रिसिएशन देते हैं। बट यूनिट प्रोडक्शन मेथड, डिप्लीशन मेथड, मशीन आवर्स मेथड, उसमें हम एक्चुअल यूज देखते हैं। अगर जितना यूज उतना डिप्रिसिएशन, जितना कम यूज उतना कम डिप्रिसिएशन। अगर वो मेथड्स फॉलो करते हो तो डिप्रिसिएशन विल बी वेरिएबल। इफ यू फॉलो यूनिट प्रोडक्शन मेथड, इफ यू फॉलो डिप्लीशन मेथड और मशीन आवर मेथड्स, उनके केस में डेप्रिसिएशन विल बी वेरिएबल, बिकॉज जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन, जितना कम यूज होगा उतना कम डेप्रिसिएशन, बराबर। बट इफ यू आर फॉलोइंग द डेप्रिसिएशन मेथड्स लाइक SLM, WDV or sum of the years digit method, the depreciation on not actual use, it is on the basis of time. So depreciation remains fixed whether you use it or you do not use it during that period of time. So ऐसे केसेस में depreciation will be fixed charge, fixed cost. Then आगे next, production may be defined as an act of creating utility. Obviously creation of the utility is called as destroying utility. वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं हो सकती, वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती है, राइट। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अर्निंग रेवेन्यू, इट इज अ क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटीज। MC curve cuts AVC and ATC, average total cost. If you remember, this is my average cost, this is my average variable cost, and my MC cuts minimum point of both average cost and average variable cost. So minimum point at the falling part of each, no, at the different points, no, at their respective minimas. In general, most of the production functions measure productivity of the factors of production, productivity, ठीक है, efficiency of factors, labor क्या, efficiency of the labor, the relation between factors of production, no, economies of the scale, no, the relation between physical change in the input and physical change in the output. Physical relation between input and output is a definition of the production function. Then the period of the time in which plant capacity can be changed, capacity itself can be changed, is obviously the long period. Market period मतलब very short period. Actually चार रन होते हैं, एक मार्केट रन, इसको शॉर्ट रन से भी शॉर्ट, राइट, वेरी शॉर्ट रन, इसमें यू कैन चेंज एनीथिंग, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इवन लेबर भी चेंज करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। सेकंड शॉर्ट रन, फिर लॉन्ग रन। इसमें टेक्नोलॉजी के सिवा सब कुछ चेंज हो सकता है लॉन्ग रन में, एंड जहां पे टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी उसको सेक्युलर पीरियड
और वेरी लॉन्ग रन, उसमें टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी, जहां पे टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी, एंड जहां पे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, योर एवरेज कॉस्ट कर्व इज एल शेप्ड. इफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, योर एलएसी इज बोट शेप्ड, यू शेप्ड. ठीक है, सो इसे जनरली 4 रन होते हैं, लिख लेना आपके इधर. मार्केट रन नहीं, मार्केट पीरियड बोलते हैं, एंड सेक्युलर पीरियड बोलते हैं, रन नहीं बोलते उसको. मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, सेक्युलर पीरियड, ऐसे. ठीक है, बट जनरली हम हमारे स्टडी पर्पज के लिए लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में ही हम चीजें कंसिडर करते हैं. ठीक है, आगे पता होनी चाहिए देयर बेसिकली 4 रन्स और 4 पीरियड्स, प्रोडक्शन पीरियड्स. देन which of the following is a correct? Which of the following is correct? Firms that earn accounting profits are economically profitable? No. जो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाएंगे वो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल रहेंगे. वी इन अकाउंट्स वी कंसीडर अकाउंटिंग प्रॉफिट, इन इकोनॉमिक्स वी कंसीडर इकोनॉमिक प्रॉफिट. एंड व्हाट इज माय फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट. ये अकाउंटिंग प्रॉफिट देगा मुझे, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट रहेगा, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस लेस इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देयरफॉर जो मिलेगा ये रहेगा आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट. अगर ये इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव है, हम इसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट. फर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल या सुपर नॉर्मल. रियली गुड, रियली गुड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग. इफ फर्म्स आर अर्निंग जीरो, ये आंसर जीरो है, zero economic profit is they are earning normal profit. Still good. Means they are recovering everything, even their cost. Owner खुद की cost भी recover करता है. Really good. And if they are earning negative economic profit, they are into losses. ठीक है, आगे. So firms that earn accounting profit or economic profit will know. The firms which earn economic profits are economically profitable. Opportunity cost plus accounting cost is economic cost. ये correct है. When firms demand curve slopes downward, marginal revenue will rise as output rises. कल मैंने आपको एक बोलते बोलते बोला था. If you remember, marginal revenue decrease होता है. Marginal revenue decrease होता है. MR डिक्रीज होता है. MR डिक्रीज होता है. उन्होंने बोला MR इंक्रीज हो रहा है. सो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है. यहां पे लिखो राइज नहीं, एक्चुअली क्या होना चाहिए, फॉल. यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक. आपको उसके करेक्ट स्टेटमेंट भी पता होने चाहिए. ठीक है, आगे. द फर्म इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय सेलिंग मोर आउटपुट देन देयर राइवल्स. नॉट नेसेसरी. ज्यादा आउटपुट करोगे आप लॉस में भी हो सकते हो, लाइक दिस. ये वाले एग्जांपल में देखो, यू आर इनटू लॉसेस. इफ यू, दिस इज लॉस, टोटल लॉस था, बराबर ना. आप जितना आउटपुट ज्यादा कर रहे हो उतना ज्यादा लॉस भी बन रहा है. सो डज नॉट मीन कि ज्यादा आउटपुट मतलब ज्यादा प्रॉफिट. नो. या कम आउटपुट मतलब कम प्रॉफिट. नॉट एट ऑल. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम यहां पे रहता है. सॉरी, यहां पे MR इज इक्वल टू MC. जहां पे MR एंड MC कट करेंगे एक दूसरे को, वो वाला आउटपुट मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस वाला आउटपुट रहता है.
यही तो मार्केट में इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जो हमें स्टडी करनी है। आगे यहां पे लिख लेना, एक्चुअली मैक्सिमम प्रॉफिट इज where MR is equal to MC is equal to MC। ठीक है, आगे a rational person does not act unless his actions are ethical, the action produces marginal cost that exceed marginal benefit। कभी rational person ये काम करेगा जिसमें उसकी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट विल बी मोर देन मार्जिनल बेनिफिट्स, मतलब MC इज मोर देन MR, ये लॉस में रहेगा, दैट एक्शन विल पुट हिम इनटू लॉसेस। अगर वो ऑलरेडी प्रॉफिट में, प्रॉफिट विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, इफ इज इनटू लॉस, लॉस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एक्शन। रैशनल प्रोड्यूसर or rational person never does anything in which his marginal cost is more than marginal revenue. The action produces marginal benefits that exceeds marginal cost. Yes, हमेशा प्रॉफिट ढूंढेगा, that action will put into profit। ठीक है, then the action makes money for the person, no, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, बेनिफिट शुड बी मोर देन द कॉस्ट, एडिशनल बेनिफिट शुड बी मोर देन एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल बेनिफिट मींस मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी मोर देन एडिशनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। आगे ठीक है, मिस्टर एक्स एंड कंपनी ऑपरेट्स इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। He sells his product at rupees 8 per unit. Selling price is 8. His fixed costs are 100. Fixed cost is 100. Okay. Again, total cost you can find out. So when output is 0, still there is a cost. When output is 0, still there is a cost. That cost has to be fixed cost, and it is a short run. It is a short run because अगर fixed cost है वो short run है। यहाँ पे 105, 111, 118, 126, 136 and 150 marginal cost, change in the variable cost or change in the total cost because of change in the unit, it is 1 unit change, every place पे 1 यूनिट का चेंज है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 5 होगी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे आई थिंक 14। ठीक है, आगे marginal cost, what is Mr. X and company's total cost when 4 units are produced? When 4 units are produced, cost is 126. Total cost is total fixed cost plus total variable cost. Fixed cost for every कोई भी यूनिट करो, it is 100 plus variable cost. When Mr. X and company's production increases from 5 to 6, what is the marginal cost? Is 14. So sixth unit बनाने की कॉस्ट 14 रुपीज है। आगे, the average fixed cost of producing 4 units is AFC. Average fixed cost of producing 4 units is 100 total fixed cost, TFC divided by output 4 is 25. The average total cost of producing 6 units, average total cost divided by output, 6 units की total cost 150 है, divided by 6 I think 25. Then
when will Mr. X and company maximize the profit? दिस इज मार्केट क्वेश्चन, बट मैं यहाँ पे आंसर देना चाहूंगा. मार्केट मार्केट क्वेश्चन, ध्यान देना. क्या पूछा है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट वियर MR इज इक्वल टू MC. सर MR नहीं पता, रेवेन्यू कितना है? 8 पर यूनिट. ध्यान देना एवरीवन, मैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिख रहा हूं. He sells his product at ₹8 per unit. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. 8 per unit. 0 units multiplied by 0. He sells 1 unit, produce 1 unit and sells 1 unit. 8 multiplied by 1. 8 rupees total revenue. 8 multiplied by 2. एक यूनिट 8 का, तो 2 यूनिट का कितना रहेगा रेवेन्यू? 16. 3 यूनिट सेल किए, 8 के 3 यूनिट्स 24. सोल्ड 4 यूनिट्स 32. Sold 5 units. Total revenue is 40. Sold 6 units. बराबर 48. What is marginal revenue? मार्जिनल रेवेन्यू देखो, मार्जिनल रेवेन्यू, या मैं यहां पे लेता हूं मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल इज अ चेंज ना, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू. 0 से 8, 8 से 16, 8. चेंज इन द यूनिट इज 1 ना, सो 16 minus 8 upon 2 minus 1. Change 8, change 8, change 8, change 8. So marginal revenue is a constant. या तो marginal revenue constant रहेगा, marginal revenue या तो constant रह सकता है या वो डिक्रीज होता है. परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है. फॉर योर इंफॉर्मेशन, मार्केट में समझेंगे बट कोई चीजें समझ सकते हो, इतना भी कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं होता है. परफेक्ट कंपटीशन में MR कांस्टेंट रहता है एंड इन परफेक्ट कंपटीशन में MR डिक्रीज होता है. क्यों होता है उसके रीजंस अलग है, बट इतना तो समझ सकते हो. यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है तो यू कैन सी MR इज कांस्टेंट. अब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट वाला ढूंढना है, वियर MR इज इक्वल टू MC. MR 8 MC 5 not equal. MR 8 MC 6 not equal. MR 8 MC 7 not equal. MR 8 MC 8 दोनों इक्वल है यहाँ पे. MR 8 MC 10 not equal. MR 8 MC 40 not equal. ध्यान देना आप. MR curve is a constant 8. आउटपुट है. MR curve is a constant 8 8 8 8 8. कितना भी यूनिट करो 1 2 3 4 5 जितने भी उतने. MC देखो, MC पहले 5 थी, फिर 6 हो गई, कम हो गई, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 14. MC 5 से नीचे होके 6 हो गई, 7 8 ऐसे 8 10 14. सो जहां पे ये दोनों इक्वल रहते हैं MR एंड MC, जहां पे MR एंड MC इक्वल रहेंगे एंड नीचे से कट करनी चाहिए MC ने, नीचे से कट करना चाहिए. सो दैट इज 4th यूनिट. दोनों इक्वल है, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. आंसर इज व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस. अब प्रॉफिट निकाल सकते हो आप, ध्यान देना. टोटल प्रॉफिट मैं निकाल के दिखाता हूं आपको. देखो आपके पास टोटल रेवेन्यू है, योर टोटल रेवेन्यू, योर टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज अ प्रॉफिट. टोटल रेवेन्यू इज 0 माइनस टोटल कॉस्ट 100, लॉस 100. ध्यान देना, टोटल रेवेन्यू इज 8, टोटल कॉस्ट इज 105, लॉस है 97. टोटल रेवेन्यू 16, टोटल कॉस्ट इज 111,
लॉस ऑफ 95, टोटल रेवेन्यू 24, टोटल कॉस्ट 3 यूनिट्स का रेवेन्यू 24 है, 3 यूनिट्स की कॉस्ट 118 है, लॉस ऑफ 94, total revenue of 4 units is 32, total cost is 126, 126 minus 32, loss of 94, total revenue of 5 units is 40, cost is 136, 136 minus 40, loss of 96, total revenue of 6 units is 48 minus total cost of 6 units is 150 is 102. You are into losses. 100 का लॉस, 97 का लॉस, 95 का लॉस, 94 का लॉस, 94 का लॉस, 96 का लॉस एंड 102. इसमें से 2 लॉसेस आर बेस्ट. कौन से लॉसेस बेस्ट है? जहां पे लॉस मिनिमम रहता है ये वाला 94 का. दिस इज वन लॉस, मिनिमम लॉस, एंड दूसरा लॉस है ये वाला 94 का minimum loss. Let me again draw it. ये which is profit में maximum profit is the best, loss में least loss is the best. ठीक है? So आप देखोगे there are 2 situations जहां पे आपका loss equal है. When you produce 3 units, your loss is 94. When you produce 4 units, your loss is 94. But 3 units पे your MR is 8 and MC is 7. They are not equal. 4th unit पे MR is 8, MC is 8. They are equal. So मैं वही दिखा रहा हूँ. MR is equal to MC जहां पे होगा ना, वहां पे अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमम होगा, लॉस होगा तो मिनिमम होगा. आंसर इज 4. यहाँ पे लिखो where MR is equal to MC, right? Where MR is equal to MC4. इसका आंसर मार्केट में और अच्छे से समझेगा. बट मैंने आपको मैथमेटिकली लिखा है प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढते हैं. व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. प्रॉफिट कैसे ढूंढते हो? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू ढूंढा, 1 यूनिट 8 रुपए में सेल हो रहा है. 1 यूनिट सेल होगा तो 8 रुपए, 2 यूनिट सेल होगा तो 16, 3 यूनिट सेल होंगे तो 18 रुपीज, कितना 24 का सेल रहेगा. 4 यूनिट सेल होंगे तो 32 का सेल होगा. 5 यूनिट सेल को तो मल्टीप्लाई बाय 8, 40. your total sales, your total cost difference is profit. आप वैसे भी ढूंढ सकते हो. अब प्रॉफिट ढूंढो, आपका आंसर पता चलेगा. जहां पे आपका लोएस्ट लॉस है वहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो MR is 8, MC is also 8. दोनों इक्वल होते हैं. ये मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं आगे, बट उतना करने की जरूरत नहीं. इफ यू कंपेयर MC विथ MR, दोनों जहां पे इक्वल रहेंगे, दोनों जहां पे इक्वल रहेंगे, that point is the maximum profit or lowest loss position. but ये मार्केट का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं. the cost of one thing in terms of alternative given up, you choose one alternative and you gave up another alternative. Cost of one thing in terms of alternative given up is called as opportunity cost. When as a result of decrease in the price of a good, when as a result of decrease in the price of a good, total expenditure. अच्छा, ये एक्चुअली मार्केट का क्वेश्चन, ये डिमांड का इलास्टिसिटी. जब प्राइस कम होती है, टोटल एक्सपेंडिचर, price as when as a result of decrease in the price, total expenditure also decreases. When they move in the same direction, answer elasticity is less than 1. When they move in the same direction, elasticity is less than 1. If they move in the opposite direction, it is greater than 1. And price कितनी भी change हो, कैसे भी change हो, expenditure remains constant. Answer is 1. It is expenditure method or outlay method or total revenue method of the price elasticity. अच्छा, ये भी इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है. आई डोंट नो यहाँ पे कैसे आए. ठीक है. The point elasticity at the midpoint of the demand curve is midpoint पे 1 होती है, because
low L upon U, length of lower segment upon length of upper segment is equal 1. आगे ध्यान देना, they have given you Sumit's production data given for the table 1. Use the table 1 to answer questions 7 to 11. Number of workers, you can see as number of workers increase from 1 to 10, as the number of workers increase from 1 to 10, you can see the total output 10 से 61 हुआ है, 10 से 61 हुआ है. So as you increase the labor, output is increasing. देखते हैं. Suppose Sumit has to pay his worker rupees 20 per hour. 20 per hour. And further supposes there are no other production cost. खाली wages है. There are no other production cost. What is marginal product of the fifth worker? Fifth worker का MP पूछा, marginal product. Fifth labor का change in the total output divided by change in the input, marginal product. When you employed 4 workers, your output was 40. When you added fifth worker, your output increases to 47. So fifth आने की वजह से your output has increased by 7. So answer is 7. Sumit's average total cost when 40 units are produced. Average total cost पूछा है. 40 units are produced. To produce 40 units, you need 4 laborers. And उनका rate है 4 laborers. उनका rate क्या है? 20 per hour. To produce 40 units, you require 4 persons or 4 hours. Number of hours बोलो चाहिए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता. You have to spend rupees 80. You have to spend rupees 80. बाकी कोई भी कॉस्ट नहीं, खाली वेजेस है. नो फिक्स कॉस्ट, नथिंग. अगर आप उन्होंने क्या बोला है, एवरेज टोटल कॉस्ट व्हेन 40 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. सो उन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन को साथ में दिया है. प्रोडक्शन फंक्शन दिया, वहां से हमें कॉस्ट ढूंढनी है. अगर हमें 40 यूनिट्स चाहिए तो हमें 4 बंदे काम पे लगाने होंगे एंड उनका वेजेस है 20 पर आवर. या यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स बोलो चाहिए तो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो. ठीक है, आवर्स. सो टू प्रोड्यूस 40 यूनिट्स 4 आवर्स आर रिक्वायर्ड. एक आवर का वेज रेट 20 है तो टोटल कितने वेजेस लगेंगे? 80. सो टोटल कॉस्ट इज 80 डिवाइडेड बाय आउटपुट. कितना आउटपुट है? 40. यूनिट्स प्रोड्यूस इज 40. सो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2. बच्चे किससे डिवाइड करते हैं पता है? वो ₹80 को 4 से डिवाइड करते हैं. आपको वेज रेट मिलेगा, हमें वेज रेट नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है? एवरेज कॉस्ट पूछिए. उन्होंने एवरेज टोटल कॉस्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इनपुट नहीं, लेबर नहीं, आउटपुट. आउटपुट इज 40. इसलिए आंसर 2 है. और बच्चे 20 लिख के आते हैं, डी आंसर लिख के आते हैं. देखो ये याद रखना, आप कॉस्ट के लिए डिवाइड बाय आउटपुट करते हो एंड प्रोडक्ट के केस में डिवाइडेड बाय इनपुट करते हो. आगे यूजिंग द टेबल 1 वी नो दैट अप्रोक्सीमेट मार्जिनल कॉस्ट. क्या बोला उन्होंने? अप्रोक्सीमेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 52nd यूनिट इज. अच्छा, 52nd यूनिट की कॉस्ट पूछ रहे हैं, ध्यान देना. अच्छा, 52nd यूनिट की कॉस्ट मतलब यहां से यहां मूव हो रहे. आप कॉस्ट पूछ रहे, मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहे. टू प्रोड्यूस 47 यूनिट्स आपको 5 आवर्स लग रहा है. 5 मल्टीप्लाई बाय 20, कॉस्ट इज 100. टू प्रोड्यूस 52 यूनिट्स यू रिक्वायर 6 लेबर आवर्स. बोलो, कॉस्ट इज 120 टोटल कॉस्ट.
Total cost of producing 47 units is 100. Total cost of producing 52 units is 120. So change in the total cost upon change in the labor नहीं, change in the output. Total cost में change is 20, output में change is 5. So it is rupees 4. रुपीज 4. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, लिखो जिनके पास नोट्स है ना, लिखो कितना है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 20, रुपीज 20. दिस इज रुपीज 40, रुपीज 60, रुपीज 80, like this. 100, 120, 140, 160, 180 and 200. एंड जब मार्जिनल कॉस्ट ढूंढते हो, चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द आउटपुट करते हो. सो कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय 20 बिकॉज ऑफ 5 एडिशनल यूनिट्स, सो इट इज 4 per unit. नेक्स्ट, सपोज Sumit decides to purchase fire insurance. Good question. Suppose Sumit decides to purchase fire insurance which costs rupees 87,600 a year. As it happens, it works out to be rupees 10 per hour. The approximate marginal cost of the 52nd unit now is. Try to understand. Sumit decides to purchase fire insurance. Fire insurance is a fixed cost. And marginal cost does not change because of the fixed cost. Because fixed cost remains same. Marginal cost changes because of, right, change in the variable cost. और यहाँ पे सब labor cost है. So answer will still remain 4. Still remain 4. अगर आपको करना है तो आप देखो, आपका फायर इंश्योरेंस कितना एनुअल 87,600. So यहाँ पे आपकी 5 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी रहेगी? 5. अगर आपको 47 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, यू रिक्वायर 5 लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस इंश्योरेंस कितना है 87,600. Your total cost will be 100 plus 87,600, 87,700. To produce 47 units, you have to spend 87,700. To produce 52 units, you require 6 persons or 6 labor hours. Multiply by 20, 120 plus fire insurance तो same रहेगा because it is a fixed cost. 87,600 plus 120, it is 87,720. So change in the total cost is 20, change in the output is 5, 20 divided by 5, answer still remains 4. No, मैं वही बोल रहा हूं, फायर इंश्योरेंस का नेचर फिक्स कॉस्ट है. फिक्स कॉस्ट की वजह से कभी भी मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं होती है. मार्जिनल कॉस्ट, आप बोलोगे सर चेंज इन द टोटल कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट, चेंज इन द टोटल कॉस्ट इज, ठीक है, अरे क्या, यू डोंट गेट इट, इसका कोई यूज नहीं है. वो कैपेसिटी के हिसाब से बोल रहे हैं, कैपेसिटी के हिसाब से बोल रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आप बोलोगे सर चेंज इन द टोटल कॉस्ट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट रहती है, बट फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है. सो जो चेंज होती है टोटल कॉस्ट में वो वेरिएबल कॉस्ट रहती है. इसलिए चेंज इन द वेरिएबल कॉस्ट इज, change in the variable cost is actually the marginal cost. और यहाँ पे लिखा as it happens it work out 10. अगर आप कम टाइम यूज करोगे तो वो रेट ज्यादा हो जाएगा, बस क्या है, टोटल तो सेम रहेगा ना, 87,600 सेम रहेगा, ठीक है. आगे जिसका कोई यूज नहीं है वो जानबूझ के आपको मामू बनाने के दिया है वो. और दिस इज रियली गुड क्वेश्चन. बच्चे ढूंढते बैठे, उनको समझ में आता क्या करो, अरे कोई करना नहीं है, फिक्स कॉस्ट है वो. सो पहले जो आंसर था वही हुआ, अभी भी आंसर रहेगा. आगे, सुमित मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द 6th वर्कर, मार्जिनल प्रोडक्ट
6th वर्कर ना, कौन से वर्कर का बोला है? 9th वर्कर। 9th वर्कर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 8 वाले 8 वर्कर्स 58 आउटपुट बना रहे थे, 9 मिला के टोटल 60 बना रहे हैं। सो 9th आने की वजह से आउटपुट इंक्रीज बाय 2, पॉजिटिव 2 यूनिट्स हो गया। सो दिस इज गुड क्वेश्चन ओवरऑल, बिकॉज इसमें प्रोडक्शन फंक्शन दिए, लेबर दिया, लेबर का रेट दिया है, तो वहां से आप कॉस्ट फंक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट, if a firm's average variable cost is rising, AVC is rising, its marginal cost must be, देखो जब एवीसी इंक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज ही हो रही होगी, जब ये डिक्रीज होती है, एवीसी डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है, लोएस्ट होती है, इंक्रीज, कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। जब एवीसी डिक्रीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है, लोएस्ट होती है और इंक्रीज भी होती है। बट जब ए इंक्रीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट उसको मिड पॉइंट को, लोएस्ट पॉइंट को कट करके ऊपर जाती है। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इंक्रीजिंग एंड बी मोर देन एवीसी। मार्जिनल कॉस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, तो इसका टेंशन नहीं। अबोव द टोटल कॉस्ट कर्व कोई लेना देना नहीं, अबोव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यस, ऑल ऑफ द अबोव, आंसर इज सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18, ए फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन शोज, प्रोडक्शन फंक्शन दो चीजें बोलता है, एक विद गिवन इनपुट, प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन, इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन, विद गिवन इनपुट मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी अचीव्ड, और एक इनपुट पता है तो मैक्सिमम आउटपुट, या इफ यू नो द आउटपुट मिनिमम इनपुट्स रिक्वायर्ड। दो वे से बात करता है, shows how much output and the level of input required to maximize the profit. No, production function does not talk about the maximization of profit, establishes the minimum level of the output that can be produced with available, minimum level of output नहीं, हमें maximum output चाहिए, minimum नहीं चाहिए, shows maximum output that can be produced with a given amount of input with available technology, answer is C। यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट, हमें आउटपुट मैक्सिमम चाहिए, इसलिए आंसर बी रॉन्ग है। विद गिवन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेज if you increase the variable factor, eventually marginal physical productivity of the variable factor will decrease। MP पहले increase होगा, बाद में decrease ही होगा। states that beyond some level of variable input, average product of that variable input begins to increase steadily। No, actually होता क्या है, बियॉन्ड ए लेवल ऑफ इनपुट्स, लेबर एक लेवल के बाद एवरेज प्रोडक्ट एक्चुअली डिक्रीज होता है, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। सो उन्होंने लिखा है एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, बिगिंस टू इंक्रीज स्टेडीली, रॉन्ग, एक्चुअली एपी डिक्रीज होगा, will eventually decrease, MP eventually decrease, दोनों। assumes that there is a technological improvement over time, no। law of diminishing return, हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, दिस इज शॉर्ट रन, एंड शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, so this is not possible। actually technology should be constant with the given technology, with given fixed inputs। as we increase the variable input, eventually your MP as well as AP should decrease। Again, states that beyond some level of variable input, marginal product of the labor variable input begins to decrease steadily। Perfect, and this is a statement of the law। marginal product eventually decrease होगा, informs a firm whether or not to use factor input। No, ऐसे कुछ नहीं। So answer is C। These are really good questions। ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं।
ध्यान देना, तीनों का आंसर निकालने का तरीका एक ही है. यू आर गिवन आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट. कॉस्ट फंक्शन दिया है, आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट. द अबो इज एग्जाम्पल ऑफ, अबो इज एग्जाम्पल ऑफ. Decreasing returns to scale, increasing returns to scale, constant returns to scale and positive fixed cost. देखो, कोई मुझे बोलेगा इज इट, पहले देख के, इज इट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. पहले मुझे बोलो इज इट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. इट्स योर ऑब्जर्वेशन. व्हाट यू थिंक, इज इट शॉर्ट रन? टाइप करो मेरे इसमें, एवरीवन हैज टू टाइप. आपको क्या लगता है, इज इट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन? व्हाट यू फील? मुझे शॉर्ट रन लगता है. नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं इट इज शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. देख के समझ में आना चाहिए. दिस हैज टू बी लॉन्ग रन. व्हाई? बिकॉज when output is zero, total cost is zero. लॉन्ग रन में देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर्स नहीं होते, फिक्स कॉस्ट नहीं रहती. जो भी लॉन्ग रन में रहेगा वेरिएबल रहेगा. तो लिख लेना यहाँ पे एज टोटल कॉस्ट इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो. इट मींस देयर इज नो फिक्स कॉस्ट. नो फिक्स कॉस्ट. दैट इज देयर आर नो फिक्स फैक्टर्स. बिकॉज फिक्स कॉस्ट फिक्स फैक्टर की होती है. देयर आर नो फिक्स फैक्टर्स. इसका ही मतलब, इसका ही मतलब दिस इज लॉन्ग रन. ये समझना इंपॉर्टेंट है. सो लॉन्ग रन में जो रहेगा वो रिटर्न्स टू स्केल रहेगा, और उनके ऑप्शन भी रिटर्न्स टू स्केल में. अब ध्यान देना, ध्यान देना. आई, उन्होंने बोला है द डेटा डिपिक्ट्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. स्केल मतलब जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलते हैं तो इफ यू रिमेंबर, ध्यान देना, इफ दिस इज आउटपुट, दिस इज स्केल. लॉन्ग रन में स्केल चेंज होगी, लेबर नहीं, स्केल चेंज होगी. ठीक है, सॉरी सॉरी, उल्टा लिखना है. दिस इज स्केल, यहां पे लेबर नहीं है, पूरा स्केल चेंज हो रहा है. लेबर प्लस कैपिटल सब चेंज हो रहा है, स्केल ही चेंज हो रही है. दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस as scale increases. Marginal product also increases. It is increasing returns to scale. When scale increases, marginal product is constant, constant return to scale. When scale increases but marginal product decreases, इसको बोला जाता है decreasing returns to scale. हमें मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से, मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से हम स्केल डिसाइड करते हैं, या इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट डिसाइड करते हैं. बट यहाँ पे हमें कॉस्ट दी है, तो मैं यहाँ से एमसी ढूंढ सकता हूँ. एमसी, एमसी इज 15, 13, 10, 8, is अगेन 8. बराबर है क्या? 10 से 15, 15 हो गया,
13, 10, this is 8 and 8, बराबर ना? अब ध्यान देना, MC is decreasing, that is MP must be increasing. MC and MP are opposite. जब MC डिक्रीज होती होगी, MP क्या होती होगी? इंक्रीज. Therefore अगर इस डायग्राम को हम ऐसे देखते हैं, ठीक है? सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं. लॉन्ग रन रहेगा वो बस इतना ही. सो I will say as MC is decreasing, MP will be increasing. They are opposite. MP is increasing, so it is increasing returns to scale. It is increasing returns to scale. You are given total cost and they have asked returns to scale, returns to scale, returns to scale. तो आप MC ढूंढो and फिर MP क्या होगा समझ सकते हैं. MC 15, 15, 15, 15, 15. MC is constant. Therefore MP will also be constant. अब तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. देखते हैं टोटल कॉस्ट. व्हाट इज MC? 15, 20, 25, 32, 48. MC is increasing as output increases. MC is increasing, therefore MP डिक्रीज हो रहा होगा. अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं वो MC ने MP. जब कॉस्ट इंक्रीज क्यों होती है? बिकॉज प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है. तो दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. लिख लेना जिनको लिखना है, जल्दी करो. And this is relation between the two. लिख लेना जल्दी. Such questions are really good. बच्चे उधर MC डिक्रीज होता है तो आंसर डिक्रीजिंग लिख के आते हैं. मतलब ये फर्स्ट केस में आपका MC डिक्रीज हो रहा है, बच्चे डिक्रीजिंग रिटर्न्स के लिख के आते हैं. नहीं, MC डिक्रीज मतलब MP इंक्रीज, इंक्रीजिंग आंसर रहेगा. इसमें MP इंक्रीज होता है, बच्चे इंक्रीज रिटर्न्स के लिख के आते हैं. MC इंक्रीज हो रहा है मतलब MP डिक्रीज होता है. ठीक है, लिखो जल्दी करो खाली. Really good question. Some questions are really good. लिखो. This is a way you should understand cost functions, average cost functions and the marginal production function एक दूसरे के अपोजिट है. कॉस्ट कर्व्स देखिए तो आगे हो गया. 20, 21, 22. Question number 23. Again, very good question. Suppose you find ₹100. आप चल रहे हो और आपको 100 रुपीज मिले. If you choose to use ₹100 to go to football match, your opportunity cost of going to game is nothing because you found the money. ₹100 because you could have used ₹100 to buy other thing. मैच जाने की जगह आपने 100 रुपए से कुछ दूसरी चीज परचेस की होती. प्लस द टाइम, वैल्यू ऑफ योर टाइम स्पेंड एट द गेम, ₹100 because you could have used 100 to buy other thing, plus value of your time spent at the game, plus cost of the dinner you purchase at the game. And D, ₹100 because you could have used ₹100 to buy other thing.
व्हाट यू थिंक? ABCD, आपको क्या लगता है? अगर आपको 100 रुपीज मिलते हैं, कहां पे आप जा रहे हो, आपको 100 रुपीज मिलते हैं एंड आप मैच देखने गए, तो व्हाट कुड बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मतलब अगर 100 रुपीज नहीं मिलते तो आप वो चीज नहीं करते, अगर 100 रुपीज नहीं मिलते तो आप वो चीज नहीं करते, मैच नहीं देखते, तो आपका क्या सेव हो जाता? व्हाट डू थिंक? ABCD, चलो जल्दी बोलो। करो ना ट्राई, चारों में से तो एक ऑप्शन होगा, आपको आंसर ABCD में, आपको क्या लगता है, उस पर डिपेंड होता है। देखो, जिनका आंसर ए, नथिंग, दे डोंट हैव वैल्यू ऑफ मनी, मतलब 100 रुपए मिले उसकी आपको वैल्यू ही नहीं है, वट एवर यू फाउंड हैज अ वैल्यू, सो ए इज नॉट द आंसर। जिनका आंसर डी है, दे डोंट हैव वैल्यू ऑफ देयर टाइम, मतलब उनके लाइफ में उनके टाइम की वैल्यू ही नहीं है, समझा? वो क्या खाली पड़े हैं, जिन्होंने आंसर डी दिया है, इसका मतलब दे डोंट हैव वैल्यू ऑफ देयर ओन टाइम, उनको फर्क नहीं पड़ता टाइम वेस्ट हो या कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में वैसे होता नहीं। देयर आर सम पीपल हु हैव वैल्यू ऑफ देयर ओन टाइम एज वेल, दे थिंक 2 times बिफोर दे स्पेंड देयर टाइम। सो आंसर ए इज नॉट द करेक्ट, आंसर डी इज नॉट द करेक्ट। अब रहा बी और सी में, ₹100 plus value of your time spent or ₹100 plus value of the time spent plus cost of the dinner you purchase at the game। अब देखो, अगर आपको 100 रुपीज नहीं मिलते तो आप क्या करते हैं? आप आपका टाइम कहा दूसरी जगह पे यूज करते हैं। अगर आपको 100 रुपीज मिले, अगर आपको 100 रुपीज मिले और आप गेम को नहीं जाते तो क्या होता? वो 100 रुपीज आप कहाँ पे दूसरी जगह पे यूज करते हैं, आपका टाइम जो वहां पे जाने आने का टाइम वहां पे स्पेंड हुआ, वो कहा दूसरी जगह पे यूज होता। एंड डिनर तो आप वैसे भी करने वाले हो, आप गेम को जाओ या ना जाओ, यू आर गोना हैव डिनर। सो डिनर दोनों जगह पे, आप गेम को जाते हो तो भी आप डिनर लेने वाले हो, आप गेम को नहीं जाते तो भी डिनर लाइक करने वाले हो, तो डिनर इज नॉट ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको 100 रुपीज मिले, आपने वहां पे स्पेंड किए, आपने वो कहाँ पे इन्वेस्ट किए होते और आपने गेम के लिए यूज किए, तो 100 रुपीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एंड टाइम जो आने जाने में अगर टाइम स्पेंड हुआ आपका, वो आपने कहाँ पे दूसरी जगह पे यूज किया होता, आपने कहाँ पे काम किया होता उसकी जगह, तो 100 रुपीज भी बचते आपके, एंड आपके जो आपने कहाँ पे काम किया होता उसके आपको पैसे भी मिलते। सो जो दोनों ऑप्शंस में रहता है, जो दोनों ऑप्शंस में रहता है वो कॉस्ट नहीं रहती, दोनों में से एक में। सो आंसर इज बी एंड नॉट द सी, आंसर इज बी एंड नॉट द सी। ठीक है, आगे, यू हैव टू स्पेंड फॉर द डिनर, मैं बोल रहा हूँ दोनों जगह पे, कहाँ पे महंगा होगा कहाँ पे सस्ता होगा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, द कॉस्ट इज एट बोथ द प्लेसेस, कॉस्ट इज एट द बोथ द प्लेसेस। जो कॉस्ट दोनों जगह पे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सॉरी जो दो कॉस्ट कॉमन है, दोनों अल्टरनेटिव्स में कॉस्ट है, यू आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते हैं उधर भी जाऊंगा तो डिनर करना है, यहाँ पे रहूंगा तो डिनर करना है, तो आपके लिए वो फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर मैं मैच पे पैसे नहीं डालता तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं वहां पे जाने आने के टाइम की जगह मैं कहाँ पे दूसरी जगह काम करता हूँ, मुझे पैसा मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो that is at one place and not at that is in one option and not in the both the options, and therefore answer is B. Name which of the following is not part of the opportunity cost of going on holiday? If you decide to go on holiday, what you sacrifice? The money you spend on a theater show,
ठीक है. The money you could have made if you had stayed at home and worked, the money you spent on airline tickets, the money you spent on the food. Which of the following is not a part of the opportunity cost of going on a holiday? Not a part म्हणजे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. अगर आप हॉलीडे पे राइट हॉलीडे पे जाते हो या सपोज आप हॉलीडे पे नहीं जाते हो तो यू वोंट गो. वहां पे घूमने गए, वहां पे मूवी वगैरह देखी, सो द मनी यू स्पेंड ऑन द थिएटर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर आप हॉलीडे पे घूमने नहीं जाते तो मे बी आपने मूवी नहीं देखी होती. द मनी दैट यू कुड हैव अर्न इफ यू आर स्टेड बैक, ऑब्वियसली दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द मनी यू स्पेंड, अगर हॉलीडे पे नहीं जाते तो हम एयरलाइन की टिकट नहीं परचेस करते, सेव होता हमारा. द मनी यू स्पेंड ऑन फूड, आप हॉलीडे पे भी जाओ, घर में भी रहो, यू हैव टू स्पेंड ऑन द फूड, राइट. वो दोनों जगह पे, दोनों अल्टरनेटिव्स में. सो आंसर इज डी. जो दोनों ऑप्शंस में रहता है ना, लाइक आप घर पे रहोगे तो एयर टिकट्स नहीं लेने पड़ेंगे. अगर आप घर पे रहोगे तो आप काम करोगे, हॉलीडे पे जाओगे तो काम नहीं करोगे. एंड अगर आप घूमने गए इसलिए मूवी देख रहे हो, घर पे रहोगे तो नहीं देखोगे, मतलब थिएटर में नहीं जाओगे. सो ये ए बी सी इधर ऑफ द ऑप्शंस में, डी इन बोथ द ऑप्शंस में, एंड देयरफॉर डी इज नॉट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आगे नेक्स्ट. देन ठीक है, आगे विच इज नॉट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा था. If there are implicit cost, if there are implicit cost, क्या लिखा ठीक से पढ़ो. If there are implicit cost, economic profits will be equal to accounting profit. No, actually मेरा फॉर्मूला था, if you remember. What was my formula? Total revenue minus explicit cost, मतलब accounting cost. ये आपको देगा accounting profit. Less there are opportunity cost or implicit cost. Therefore it is economic profit. So if there is an implicit cost, in economic profit will be less than accounting profit. Economic profits will be less than accounting profit. If there is no implicit cost, ऐसे होता नहीं, because resources have alternative uses and therefore there will be implicit cost. But अगर नहीं है तो accounting cost will be itself economic profit. Then what is the average total cost? Average total cost of producing 20 units. If total fixed cost is 5,000 and average variable cost is 2. What is my average variable? 2 दी है and total units is 20. So what is my total variable cost? 2 multiplied by 20. 40 is my total variable cost plus 5,000. Total cost is total fixed cost TFC is 5,000 plus total variable cost is average variable multiplied by output 40. My total cost is 5,040 divided by 20 units. Average total cost is 252. या आप इसको 5,000 को आपके पास what is average total cost? Average variable cost plus average fixed cost. You know average variable cost is 2. What is average fixed cost? 5,000 divided by 20. It is 250. So answer 252 आ जाएगा ऐसे. For producing 100 units, total variable cost is 500 and total fixed cost is 1,000. What is average cost? So 500 is a variable cost, 1,000 is a fixed cost. Total cost is 1,500 divided by 100, 15 rupees per unit. Which of the following cost curve is never U-shaped? Never U-shaped. कौन सी कर्व बोलो ABCD? कौन सी U-shaped कभी नहीं होती? अब
एक ही कर होती है जो कभी भी यू शेप नहीं होती. बोलो, करो टाइप. एवरेज कॉस्ट कर, एवरेज वेरिएबल, मार्जिनल कॉस्ट और योर. ठीक है. हैज टू बी डी. नींद में भी बोलना चाहिए डी. गुड. In the short run, when the output of the firm increases, average fixed cost, output increase होगा, AFC decrease होगी. Isocont slopes downward to the left, upward. Iso indifference curve or isocont will never slope upward. They slope downward only. Downward to the right, downward to the right, left say right, left say right. Which of the following is considered production in the economics? Tilling of the soil, singing a song before friends, no. Preventing a child from falling into manhole on the road, charity type hai, out of humanity. Painting a picture for a pleasure, no. It is answer A. Which of the following is not a characteristics of land? Supply for economy is limited. Yes, for economy limited, individual के लिए unlimited. For economy, it is relatively inelastic, and for individual, relatively elastic. Land का. This is true. Immobile, yes. Geographically immobile, occupationally mobile. But generally हम बोलते हैं land is immobile. Its usefulness depends on the human efforts, yes, because it is a passive factor of production. Labor is required, then only we can put the land to the production. It is produced by our forefathers. No, land is a primary factor. It is a natural factor, not artificial. So D. Which of the following is economic activity? Which of the following is economic activity? Listening to the music on a radio, it is a time pass. No. Teaching one's own son at a home, no. Medical facility rendered by charitable dispensary. Charitable dispensary do not charge. Production may, that should be for consideration. Yeah. Household doing household duties. Household duties, right? Medical facility rendered by charitable dispensary. Listening to music on radio, it is your hobby. टीचिंग वंस ओन सन एट होम, ये तो नहीं है बिकॉज इसके लिए चार्जेस नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेगा. लेकिन मेडिकल डिस्पेंस भले वो चैरिटेबल है, बट दे विल बी चार्जिंग सम फीस, नॉमिनल फीस टू रिकवर द कॉस्ट. नॉमिनल फीस तो लेते होंगे. सो आंसर मोर एप्रोप्रिएट इज सी. मोर एप्रोप्रिएट इज सी. ठीक है, आगे. मोर एप्रोप्रिएट इज सी. आगे. इफ, because they charge nominal fees, they will be recovering at least their cost. प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे. चैरिटेबल कॉस्ट रिकवर करते, प्रॉफिट नहीं कमाते. सो कॉस्ट तो रिकवर करे ना कस्टमर से, तो दे आर चार्जिंग समथिंग. इफ एज अ रिजल्ट ऑफ 50% इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, आउटपुट राइजेस बाय 75%, बोलो इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. पहले तो ये फैक्टर नहीं है, because you are talking about all inputs, you are talking about the scale, so it is not factor. It is wrong. It is not short run, it is long run. So answer या तो D रहेगा, B रहेगा या D रहेगा. तुम बोलो कौन सा आंसर रहेगा? Obviously B. You increase input just by 50%, output changes by more than that, 75%. Next, 36. Which of the following is correct? Land is highly mobile. No, actually it is highly immobile. Man cannot create the matter. True, man cannot create the matter, but man can add it to the matter. The services of housewives are termed as production in the economics. No, so answer is B. So हमारा correct statement क्या है? B. The producer is in equilibrium at a point where the cost line is, if you remember, producer has a multiple cost lines, has a multiple budgets. Producer has multiple budgets, and he has predetermined level of output. Demand forecasting के हिसाब से. This is IQ, isocont.
सपोज 20,000 आउटपुट की. दिस इज इनपुट X, दिस इज इनपुट Y, लेबर एंड कैपिटल. लेबर एंड कैपिटल. सपोज यहां पे ध्यान देना, ये लेबर है. मैं आपको एक चीज बोलता हूं, ध्यान देना. दिस इज लेबर एंड दिस इज कैपिटल. जहां पे वो टेंजेंट रहेगा तो द आइसो कॉस्ट लाइन, isocont line is a tangent to isocost line. He is said to be in equilibrium, right ना? Is a tangent to isocost. अब इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से देखो और आपको समझना है whether it is a capital intensive or labor intensive. कैपिटल ओरिएंटेड इंडस्ट्री और लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री. यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे लेबर है, एंड ये आपके आईक्यू है, आइसोकॉन. You are at this point. A, activity level A, and you are at this point. Activity level B. You have to tell me A and B में A is labor oriented or capital oriented, and B is A and B में से या A labor oriented है capital या B क्या है बोलो. ए के लिए आप ज्यादा क्या यूज कर रहे हो? ए में कैपिटल इज मोर. प्रोडक्शन ए जो यूनिट पे प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कैपिटल यू आर यूजिंग मोर, कैपिटल इज मोर यूज्ड. एंड बी में लेबर ज्यादा यूज हो रहा है देन द कैपिटल. लेबर यूज्ड इज मोर देन कैपिटल. सो आई विल से ए इज कैपिटल ओरिएंटेड प्रोडक्शन जो ज्यादा रहेगा, एंड बी इज लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्शन. कंट्रीज लाइक इंडिया जहां पे लेबर सप्लाई ज्यादा है तो आर इंडस्ट्री शुड बी लेबर ओरिएंटेड सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. जहां पे लेबर कम है वहां पे इंडस्ट्रीज कैपिटल ओरिएंटेड होनी चाहिए. सो यहाँ पे कैपिटल है ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेबर है. तो जिस प्रोडक्शन में यू आर यूजिंग टू थिंग्स, कैपिटल एंड लेबर. इफ यू आर यूजिंग मोर ऑफ कैपिटल इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, एंड इफ यू आर यूजिंग मोर ऑफ ए लेबर इन द प्रोडक्शन इट इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. इन द प्रोडक्शन राइट, अगर आप ए यूनिट पे काम कर रहे हो, ए लेवल पे, दोनों का आउटपुट सेम है. ए प्रोड्यूस करो, बी प्रोड्यूस करो, ए प्रोड्यूस करो, बी प्रोड्यूस करो, कोई भी, इट इज द सेम आउटपुट. हाउएवर सपोज इट इज लाइक कंट्री लाइक इंडिया, तो वी शुड बी ऑन पॉइंट बी जहां पे लेबर ज्यादा है. लेबर सरप्लस कंट्रीज शुड यूज मोर ऑफ ए लेबर देन द कैपिटल. बराबर. सो अगर हम हमारी कंट्री लाइक ऐसी कंट्री तो दे शुड वर्क हियर, एंड जहां पे लेबर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, जहां पे लेबर कम है तो दे शुड वर्क हियर. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान देना. व्हाट शुड ए कंट्री डू? तो आपको देखना है अगर लेबर सरप्लस कंट्री है वो लिखेंगे लेबर सरप्लस कंट्री, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, तो दे शुड यूज मोर ऑफ ए लेबर. तो जिस एक्सिस पे लेबर है उस एक्सिस के तरफ जाओ, वहां वो ज्यादा होना चाहिए. लेबर स्केर्सिटी कंट्री दे शुड यूज मोर ऑफ ए कैपिटल. अब उल्टा डायग्राम थोड़ा उल्टा करते हैं, एक्सिस चेंज कर देते हैं. This is capital and this is labor. Labor surplus country in this diagram should work at a point A because यहाँ पे labor is more. इतने labor है और capital बहुत कम यूज कर रहे हैं. And capital surplus countries या labor scarcity countries should work on point B in this diagram because यहाँ पे capital ज्यादा है और labor कम है. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान देना. मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत एक एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट डिपेंड्स बिकॉज यू आर यूजिंग टू इनपुट्स, लेबर एंड कैपिटल. जिस कंट्री में लेबर ज्यादा है तो दे शुड गो फॉर लेबर, वो कम रेट पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है. और जहां पे कैपिटल इजीली अवेलेबल है, कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है, तो दे शुड गो फॉर कैपिटल. तो आपको कहाँ पे ए पे काम करना है, बी पे काम करना है, डिपेंड्स व्हाट इज इजीली अवेलेबल फॉर यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में. Next, which of the following is not an economic activity?
not an economic activity. Acha, a son looking after his ailing mother, like this is out of love and affection. Mother is unwell and therefore son is looking after her. Chartered accountant doing his own practice, not an economic activity. Practice kare, it is economic activity. Then a soldier serving at a border, right? A farmer growing like meals. What I want to tell you, this is for the consideration, this is for the consideration, this is also for the consideration. So all these are the economic activities except first. ठीक है, आगे. If the marginal cost of producing 1 unit of the commodity is rupees 15, marginal cost of producing 1 unit of a commodity is rupees 15. 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट इज 15 and that the producing 2 unit is 10. Output and MC. When you produce 1 unit, marginal cost is 15, and when you produce 2 units, marginal cost is 10. Which is the correct? Can you find out total cost? 15, 2 का 25 रहेगा, बराबर ना? Sum of the marginal cost is the total cost. Total cost is 25, yes. Variable cost is 25, not necessary, because total cost में variable cost भी, total cost में fixed cost भी रहेगी, so this is not correct. Average cost is 25, no. Answer is A. Then next, the total cost of producing 5 units of a commodity is 20. 5 units की total cost is 20, and that of producing 4 unit is 15. 4 unit की cost 15 है. What is the marginal cost? Because you increase 1 unit, your total cost increased by 5. Answer is 5. Question number 41. Last question among these. The following is marginal cost schedule. Find the average cost of production of the 4 units of output. Marginal cost of 4 units. नहीं, average cost of the 4 units. So हमें 4 units की पहले total cost ढूंढनी होगी. They have given us marginal cost. First unit का 6, second unit का 5, third unit का 4, and fourth unit का 5. So what is average cost of 4 units is the total cost of 4 units divided by 4. How to find out total cost of 4 units? Summation of marginal cost of the 4 units. So it is 6 plus 5 plus 4 plus 5 divided by 4. 6 plus 5 plus 4 plus 5. 20 is the total cost of 4 units divided by 4. Answer is 5. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हमने किए हैं, एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने आपको पहले ही बोला, दीज आर फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस. ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन. अच्छा, किसी के डाउट है? इफ एनीवन हैज डाउट. ये जो दूसरा है ना, इसके अंदर के कोई क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स में 3-4 बजे तक दे दूंगा आप लोगों को. ठीक है, इसमें से प्रोडक्शन फंक्शन हमने किया था, कॉस्ट फंक्शन हमने नहीं किया था. प्रोडक्शन फंक्शन हमने क्लास में किया था. इसमें से कॉस्ट फंक्शन के लास्ट के 20 से क्वेश्चन है ना, मैंने पोल बोल के उसमें लिए थे. तो इसके आगे देना है मुझे, 185 के आगे. ठीक है, मैं कर दूंगा, वो आपको भेज दूंगा मैं. योर 100 मार्क टेस्ट टुमारो ऑन द सेम चैप्टर. ठीक है, लाइक ऑल दिस क्वेश्चंस ये मैंने ना इसमें लिए थे, पोल में लिए थे. 387 के आगे के क्वेश्चंस मैंने पोल में लिए थे, आई रिमेम्बर. तो आप देख सकते हो. ठीक है, अच्छा, किसी के क्वेश्चंस हैं?
आई विल बी देयर आफ्टर 1 PM, 1 बजे के बाद आई विल बी इन ऑफिस, ठीक है।